Thank you to each and every participant for joining us into Dashboard Reporting Analysis with Power BI training program being offered at UXL. We will now be going through the agenda of this program. First, we will be learning about UXL, training consultancy and firm, and then we will be introduced with the facilitators. Moving on, we will be discussing about why business intelligence. We are getting into 21st century skill sets. We are almost 20 years have passed now, and what's next in these in this 21st century skills which are required for us to have a really great career growth. Why Power BI in terms of business intelligence? And then we will be moving on to exponential career prospects that Power BI learning can bring into your career growth. We will be understanding about what is Microsoft Power BI, and then how the program will really work and what will ultimately be the learning outcomes of this program, which means that what skill set you will be walking away with once you complete this training. UXL is a fintech training consultancy firm which envisions to bridge the gap between potential employees and employers by creating a job-ready human resource. Now, what do we mean by that? Basically, qualify करते हैं अपनी different education system से, चाहे हम AC से qualified होते हैं, ITAP qualified होते हैं, या अपनी हम graduation complete करते हैं, masters करते हैं, लेकिन जब हम actually job environment में enter होते हैं तो वहाँ पे एक different scenario होता है, वहाँ पे हर चीज काफी practical basis पे acquire की जाती है in terms of skill set. तो उसमें होता यह है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्किल्स हैं या नहीं है, क्या आपके पास जो है वो ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप कंपनी के अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आपको सॉफ्टवेयर आता है या नहीं आता. लेकिन ये सारी ऐसे स्किल सेट होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी डिग्रीज में या क्वालिफिकेशन में जिनकी थोड़ी कमी रह जाती है. लेकिन ये सारा जो गैप है इसको यूएक्सएल ट्रेनिंग अपनी जो है ट्रेनिंग कंसल्टेंसी फर्म अपनी ट्रेनिंग से थ्रू फिल करना चाहती है, और यही उसका विजन है कि देयर शुड बी जीरो गैप इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी एंटर इनटू अ जॉब मार्केट, तो हमारे पास फुली स्किल्ड वर्कफोर्स हो. UXL is a registered training institute with Sindh Technical Education and Vocational Training Authority, STEVTA, Government of Sindh. ये अथॉरिटी जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर करती है, और अलहमदुलिल्लाह हमारी जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई भी है. उसके अलावा UXL इज अ मेंबर ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत ये पड़ती है कि हमें सारा जो हमारा फोकस है वो है ही इंडस्ट्री, कि भाई इंडस्ट्री में क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, और वो जानने के लिए हमारा KCCI में मेंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल, उनसे हम स्किल्स की जो है वो एनालिसिस करते हैं कि क्या वो स्किल्स में हम अपनी ट्रेनिंग पर लेकर आते हैं, जिसमें से एक ट्रेनिंग पावर BI की भी. UXL is also an affiliate partner with Skill Development Council Karachi, which is a project of Ministry of Federal Education and Professional Training, Government of Pakistan. आपको जो ये ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची की तरफ से मिलेगा, और उसको जो है आप फिर मजीद अपनी जो है क्रेडेंशियल्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. Now let's introduce with you the facilitators of this training program. My name is Farhan Qazi. I am an ACCA member, and I have completed my bachelor's in applied accounting from UK, and I'm also Association of Talent Development ATD verified trainer. I'm also founder of UXL and CEO of UXL. मैंने ऑलरेडी जब लंदन में मैं था वहाँ पे मैंने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, वहीं पे मैं ACCA क्वालिफाइड बना, वहीं पे मैंने बैचलर्स अपनी कंप्लीट की, और वहीं पे मैंने अपना जॉब एक्सपीरियंस भी लिया, और उसके साथ साथ वहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 साल जो है वो वहीं पे मैंने जो एक्सपीरियंस लिया उसको यूटिलाइज करते हुए मैं फर्दर दुबई में गया. दुबई में मैंने जो है वो वहाँ पे भी तकरीबन 4 से 5 साल जॉब की, जिसमें मेरी जो लास्ट जॉब थी वो IBM मिडिल ईस्ट में थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म है.
हमारे जो स्पोर्ट्स के जो लीड ट्रेनर हैं वो ताहिर अली साहब हैं, और ताहिर अली साहब का इंट्रोडक्शन कुछ देर के बाद होगा जब हमारी कोर्स आउटलाइन डिस्कस होगी। व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस। अब आप अगर इस चार्ट को देखें तो हमारा जो, ये मैं बता रहा हूं तकरीबन 15-20 साल पुराना जो दौर था या उससे पहले की हमारी एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी कि भाई उसमें जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत जो डेटा है उसमें से स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना ली, एडहॉक रिपोर्ट्स कुछ बना ली, फिर उसको फर्दर क्वेरी ड्रिल डाउन किया तो आपकी जो है वो फर्दर आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज आता कि आप कंपटीशन और अपनी इंडस्ट्री की फर्दर नॉलेज लेते गए और उसको अप्लाई करते गए। फिर आपके पास जो है वो व्हाट एक्शंस आर नीडेड फ्रॉम दिस डेटा, जो आप डेटा बनाते हैं, और आपकी इसके साथ साथ देखिए सोफिस्टिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस भी बढ़ती गई। लेकिन अब जो ये रेड वाला जो पार्ट है जिसमें टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम जो है वो एक तो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड देन हम फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट दैट कैन हैपन। कैन मतलब अब हमने पास्ट की जो डेटा है, जो हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पहले बनाते थे पास्ट डेटा में से, अब उसमें से हम फ्यूचरिस्टिक हो गए कि व्हाट कैन नाउ बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स दैट वी हैव, what can really happen, and that is where business intelligence comes in. That is where these powerful tools come in कि वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अब देखें बिग डेटा का दौर है, हमारे पास बिलियंस ऑफ बिलियंस का डेटा है, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि इस डेटा को कैसे यूटिलाइज करें। दैट इज वेयर दिस ट्रेनिंग कम्स इन, दैट इज वेयर बिजनेस इंटेलिजेंस कम्स इन। जितना आप जो है वो अपनी सोफिस्टिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ाते जाएंगे, जितना उतना ही ज्यादा आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता जाएगा। और इस सारे एक्सरसाइज के पीछे क्या है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डेटा, एंड दैट इज वेयर द पावर बीआई ट्रेनिंग कम्स इन। देन व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस? नंबर 1, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारे पास जो कमी है वो है टाइम की। हमारे पास हर चीज है लेकिन टाइम नहीं है। मतलब अगर इस डेमो के लिए भी हम बैठे हैं, लेकिन हमने पता नहीं कितनी चीजें हमारी कमिटमेंट्स होगी, उन कमिटमेंट्स को हमने लेट गो किया होगा, या हमने मे बी हमारे रिलैक्सेशन जो टाइम था उसको लेट गो किया होगा, और तब जाके हम इस डेमो के लिए आएंगे। मकसद क्या है बताने का? कि टाइम की किल्लत है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। दैट इज वेयर पावर बीआई ट्रेनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स कम्स इन। कि आपका जो काम अगर 2 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, हफ्ते में होता है, वो काम अब आपका लिटरली मिनटों में हो सकता है। When I say literally मिनटों में हो सकता है, I really do mean it के मिनटों में होता है। बिकॉज हमारी जो यहाँ पे जो टेक्निक्स हम कवर कराते हैं पावर क्यूरी में, पावर पिवट्स में, दे आर फिनोमिनल। जिस तरीके से वो आपकी स्पीड इंप्रूव कर लेती हैं, इट इज, मैं तो जो है वो ऑनेस्टली जब ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स बना रहा हूँ या जब भी इसके चेक कर रहा होता हूँ, इट इज लिटरली अ मैजिक दैट हैपेंस कि डेटा कितना जल्दी जो है वो एनालाइज हो सकता है थ्रू द यूज ऑफ दीज डिफरेंट टूल्स दैट विल बी कवर्ड इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारे पास अब जो है वो शेयरिंग का जो दौर है, जिसमें हम डेटा शेयर करते हैं कि अपने कॉलीग से रिमोटली शेयर कर रहे होते हैं। अब तो कोविड-19 में रिमोट डेस्कटॉप वर्किंग जो है उसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। तो विच मीन्स कि अब जो है वो शेयर इंफॉर्मेशन जो है वो करना बहुत इजी होना चाहिए। और ये जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप पावर बीआई की ट्रेनिंग मिसाल के तौर पे इसमें ले रहे हैं, तो आपके लिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करना बहुत ही इजी एंड विद इन अ क्लिक्स है। इनफैक्ट पावर बीआई की एक बहुत बड़ी जो कंपेटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अदर टूल्स, कि ये रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड करता है। मतलब एक तो ये होता है कि आपकी डेटा प्रोसेसिंग, आपको जो है वो आपका डेटा आ गया और उसके बाद उसको आप एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है और उसी वक्त ही आप एनालाइज कर रहे हो। दिस इज वेयर यू नो रियल टाइम एनालिसिस कम्स इन, एंड पावर बीआई हैज ऑल दीज कैपेबिलिटीज, जिसमें आप जो है वो अगर मिसाल के तौर पे आप अगर बैंक अल हबीब में काम करते हैं एंड वहां पे जो आपकी डिफरेंट ट्रांजेक्शंस आ रही हैं, आपने जो उसकी रियल टाइम एनालिसिस करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अब आप वेट नहीं करें कि वो डेटा पहले लोड हो और उस लोड होने के बाद मैं उसको डाउनलोड करूं, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको मैं रिफ्रेश करूं या उसमें डेटा नॉर्मलाइजेशन करूं। नहीं, एक दफा आपने पूरा पैटर्न सेट कर दिया, अब डेटा आता जा रहा है लाइव बेसिस पे और उसकी एनालिसिस उन डैशबोर्ड्स पे होती जा रही है जो आपने उस पावर बीआई के डेस्कटॉप की एप्लीकेशन में बना ली है।
reduces the risk of bottleneck. एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास जो है वो इतना ज्यादा डेटा आ गया है कि वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है, विच मींस हमारी प्रोडक्टिविटी जो है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो पावर बीआई जैसी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपका बॉटलनेक का जो इशू है, जिसमें इतनी ज्यादा डेटा का एमलगमेशन हो गया है कि आप जो है वो समटाइम्स यू फील लॉस्ट कि मैं इसका करूं क्या अल्टीमेटली, एंड दैट इज रियली अ ट्रू पिक्चर दैट समटाइम्स वो हो जाता है। लेकिन आप जब इस ट्रेनिंग को ले रहे होते हैं या जब आप पावर बीआई के टूल को यूज करना शुरू करेंगे तो बॉटलनेक का इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या ऐसे वेस्ट हैं सिस्टम में या क्या ऐसे डेटा इनपुट्स हैं जो ऐसे कॉलम्स हैं, ऐसे रोज हैं जो सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है या जो इतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, तो उनको जो है वो आइडेंटिफाई करने में पावर बीआई का टूल आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। और बिजनेस इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर जो टेक्निक्स है वो आपकी इसमें जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। अब हमने ये तो कवर कर लिया कि जो है वो वाई के जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों बिजनेस इंटेलिजेंस जरूरी है, बट देन वाई पावर बीआई। हमें ये पता है कि डिफरेंट और भी टूल्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के, बट यूएक्सएल ने पर्टिकुलरली पावर बीआई की तरफ क्यों फोकस किया। एक तो सबसे बड़ा जो पावर बीआई का जो फायदा है वो ये है कि हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स हैं। मतलब जैसे वो होता है ना KG1 KG2 और क्लास 1 क्लास 2 प्राइमरी स्कूल, समझे आप। तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल की जो लर्निंग होती है वो MS एक्सेल होती है। मतलब कोई भी इंटर्नशिप में एंटर होगा, कोई भी फाइनेंस के या एनालिसिस के रोल में एंटर होगा, वो MS एक्सेल को जरूर टच करेगा किसी न किसी शेप और फॉर्म में। तो इसका बताने का मकसद क्या है कि हमारी ऑलरेडी जो यूजर इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस है हम ऑलरेडी यूज्ड टू हैं विद MS एक्सेल, और ये पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है। तो हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पे सेट हो चुका है उसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं पावर बीआई में। जबकि आप अगर और एप्लीकेशंस और टूल्स अगर लेते हैं तो हर एप्लीकेशन का अपना एक जो है वो ओवरऑल एक टेम्पलेट होता है, अपना एक यूजर इंटरफेस होता है जिससे आपको जो यूज टू होना पड़ता है और उसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन पावर बीआई क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की कंटिन्यूएशन है फ्रॉम MS एक्सेल टुवर्ड्स दिस इंटेलिजेंस टूल, तो आपको एक फेमिलियरिटी होती है इस टूल के साथ और आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं मिलियंस ऑफ रोज फ्रॉम मल्टीपल ऑफ सोर्सेज। इसमें जो है वो हमारी जो कमांड एक यूज होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस डेक्स, उसको भी जो है वो यहाँ पे कवर किया जाता है, इस लैंग्वेज को कवर किया जाता है। और फिर ऑब्वियसली हम जो इसमें अल्टीमेटली जो डिफरेंट विजुअलाइजेशन के जो टूल्स हैं वो भी इसमें कवर करते हैं ताकि हमारी रिपोर्ट जो है इंटरैक्टिव बन सके। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें जो है वो एक यूजफुल एनालिसिस कन्वर्ट हो जाए वो। और एक बात बड़ी जो है वो क्लियर है कि हमारा जो माइंड है वो जो है वो पिक्चर्स को ज्यादा जल्दी करता है यूटिलाइज और लर्न करता है एज कंपेयर टू द वर्ड्स। कि अगर मैं इतना बड़ा वर्ड लिख लूंगा आपके पास या डेटा लिख लूंगा, वो डेटा इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगी बनिस्बत इसके कि आपके पास एक इंटरैक्टिव चार्ट बना हुआ हो, डैशबोर्ड बना हो, उसको आप लर्न करो, उसमें से आप मीनिंगफुल एनालिसिस निकालो और की बिजनेस डिसीजंस करो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स जो हम सीख रहे हैं या इनको जो अप्लाई कर रहे हैं, इनका फायदा क्या है अल्टीमेटली। इसका जो है मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। ये लास्ट ईयर की ही रिपोर्ट है और इसमें जो है इस रिपोर्ट में ये हुआ है कि देखिए मेन वर्ड क्या है, कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। आई रियली लाइक दिस वर्ड। मैं इसको हाईलाइट भी करना पसंद करूंगा। लेट मी जस्ट क्विकली हाईलाइट इट। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ड्रॉ ये देखिए, ये एक जो है ना यहाँ पे देखें क्या हाईलाइट करके देखें क्या कह रहा है। By 2025 new jobs will emerge। मतलब अभी जो है वो they are still emerging, new jobs emerge करेंगी by 2025। मतलब हुई नहीं है लेकिन this process is emerging slowly and there is this disruption happening as we continue to move into this 21st century। तो उसमें जो है वो emerge जो हो रहे हैं, हमारी जो न्यू जॉब्स जो emerge हो रही हैं उसमें जो है वो ग्रोइंग जॉब डिमांड्स क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 ये बोलता है कि हमारे पास ग्रोइंग जॉब डिमांड में डेटा एनालिस्ट जो है वो टॉप 10 में आता है।
अब यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये कि एक तो देखें ग्रोइंग जॉब डिमांड इन्होंने बता दी कि टॉप 10 क्या होंगी, लेकिन ये भी पॉसिबल था कि डेटा एनालिस्ट का जो रोल है ये नंबर 2 पे होता, नंबर 3 पे होता, या नंबर 4 पे या नंबर 10 पे होता। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको डेटा एनालिस्ट के प्रोफेशन को और इस जॉब को जो कि इमर्ज हो रही है, अगेन इमर्ज का वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमर्ज हो रही है, उसको नंबर 1 पे लेकर आई है। विच मीन्स कि अगर हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपना डेटा एनालिस्ट का करियर फर्दर एडवांस करते हैं थ्रू दीज डिफरेंट टूल्स की ट्रेनिंग, पावर बीआई की ट्रेनिंग, तो आप जो है वो अपने आप को एक लिहाज से, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि 100%, बट आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि एक लिहाज से, एक पर्सपेक्टिव से आप अपने आप को रिसेशन प्रूफ बना रहे हैं। आप अपने आप को जो एक होता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उसके प्रूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट है जो मार्केट रिसर्च में बोला गया है कि नंबर 1 पे जा रहा है। और इसको बेहतर कौन कौन समझ सकता है इस सारे स्किल सेट को, कि हम जो है वो कोविड-19 के एरा में गुजर रहे हैं और कोविड-19 में कितना एनालिटिकल का काम हुआ है कि ये आप देखें। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जो कि अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल चल रहा है हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट आ गया है। स्मार्ट लॉकडाउन या एरिया स्पेसिफिक लॉकडाउन, ये क्यों गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन लेकर आ गई? क्योंकि उन्होंने डेटा को एनालाइज किया और डेटा को एनालाइज करने के बाद उन्होंने कहा कि ये वाले एरियाज में से सबसे ज्यादा जो है वो कोविड का खतरा है, ये वाले एरिया से सबसे ज्यादा जो है हमें हमारे ये जो कोविड-19 का वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो उन्होंने इस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया? दिस इज ओनली थ्रू डेटा एनालिसिस, एंड दैट इज व्हाट रियली यू विल बी डूइंग एज वेल इन अ सेंस। मतलब आप इसी तरीके के ही काम होंगे कि जिसमें अगर आपको कोई भी बैंक या कोई भी आपकी एंटरप्राइज आपको जो काम देती है उसमें से वो पूरा डेटा होगा, उस डेटा में से आप जो वो मीनिंगफुल रिजल्ट ड्रिवन एक्शंस लेना शुरू होगा। तो ये कोविड-19 का एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल हो जाता है। एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है, इससे ज्यादा बड़े एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो ये कोविड-19 का जो एरा आ गया है, जो है वो लॉसेस भी हुए हैं। तो लेकिन समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमारा एट दिस टाइम एंड स्पेस डेटा एनालिसिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अगर हम इस सेट को सीख लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम अपने आप को जो है वो अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पावर बीआई। आखिर ये पावर बीआई है क्या? हमने इतना सारा डिस्कस किया कि बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इतना ज्यादा डिस्कस किया कि बिजनेस इंटेलिजेंस में पावर बीआई का टूल कैसे हेल्पफुल है, लेकिन फिर ये पावर बीआई का टूल करता क्या है और ये व्हाट रियली व्हाई, क्या है इसके एडवांटेज है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज अ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट व्हिच इनेबल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। अगेन ये वही कोविड-19 वाला एग्जांपल मिसाल के तौर पे आ सकता है कि हमारे पास डेटा है, गवर्नमेंट के पास डेटा है कि कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या कौन से एरियाज में से कोविड-19 के रिजल्ट सबसे ज्यादा आई है, और उधर ही हमने डिसीजन मेकिंग करके स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। तो ये एक गैप था जो हमारा फुलफिल हुआ थ्रू दिस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। और इस तरीके के डिफरेंट एग्जांपल्स फिर आपकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या आपकी जो सर्विसेज के इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे भी यूटिलाइज होते हैं। It includes both desktop and web-based application for loading, which means के आपके पास जो दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आपका जो लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप पीसी है उसमें भी आप पावर बीआई डेस्कटॉप को एक्सेस करते हैं, वो उसमें इंस्टॉल हो जाती है एप्लीकेशन। या फिर हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज, क्योंकि आजकल जो है वो रिमोट डेस्क वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑल्सो अनेबल्स द ऑप्शन ऑफ वेब बेस्ड, कि आप क्लाउड बेसिस पे जो है वो ये रियल टाइम में डेटा अपडेट करें, वेब ब्राउजर पे उसको अपडेट करें और वो आपका एनालिटिकल टूल जो है वो अपडेट करता जाएगा और आपकी रिपोर्ट्स शेयर हो सकती हैं। विच मीन्स के आप जो है वो इजीली वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं once you have the skill set of Power BI. For further details, you can visit powerbi.microsoft.com, and there is this short video that we'll be looking at कि एक हमारे पास ये एंटरप्रेन्योर है
और उस एंटरप्रेन्योर के लिए ये पावर बीआई का डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे यूजफुल हुआ। तो आई शॉर्ट पॉज और इस वीडियो को थोड़ा सा फर्दर देखते हैं और लर्न करते हैं कि ये पावर बीआई की डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे यूजफुल हुई। लेट्स हियर दिस वीडियो। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर है उसको कुछ डेटा पब्लिक डोमेन से भी चाहिए, पब्लिक सोर्स से भी चाहिए। तो व्हाट इट रियली शोइंग इज दैट सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशंस एज वेल, जिनसे आप डेटा ले सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पावर बीआई में और उसको फिर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, इसको चेक कर लीजिए। To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. So what do we understand from here कि हमारे जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको एक बिजनेस एक डील का डिसीजन बनाना है और उस डील का डिसीजन बनाने के लिए उसको डेटा चाहिए जो इसने टास्क दिया अपने बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर को। उस बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर ने डिफरेंट रोल्स को कंबाइन किया और उसका जो है वो उसको एनालाइज करने के लिए एक डेटा बाहर से पब्लिक डेटा का डोमेन का था वो भी उसको मर्ज इंटीग्रेट किया और उसमें से जो है वो डिफरेंट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाए ताकि जो है वो अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर है उससे शेयर किया जाए और फिर उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाए। दैट इज व्हाट रियली we understand from this video. इस तरीके से प्रैक्टिकली ये रिजॉल्व करती है हमारे बिजनेस के इश्यूज। अच्छा, नाउ व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई? पावर बीआई का वर्कफ्लो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पावर बीआई जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसमें पहले हम कनेक्ट करते हैं, शेप करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ डेटा, जो भी हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल है डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा होता है, उसकी रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं डिफरेंट टूल्स में। तो मिसाल के तौर पे अगर बैंक अल हबीब है, बैंक अल हबीब की डिफरेंट ब्रांचेस हैं कराची में, फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में। नाउ बैंक अल हबीब को एक रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है ऑफ दिस डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस और वो हेड ऑफिस में या उनका जो हेडक्वार्टर है वहां पे मर्ज करना है। एंड दैट इज वेयर पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन कम्स इन कि किस तरीके से आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज को मर्ज करके एक कंसोलिडेटेड व्यू बना सकते हैं और उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं अल्टीमेटली एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट में, जो कि आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली थर्ड जो स्क्रीन है उसमें विजिबल है कि ये कैसा डेटा था, उस डेटा को फिर हमने किस तरीके से जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप की
और फिर अल्टीमेटली हमने जो रिपोर्ट्स बनाई उस कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कितनी जो है वो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। कंपेयर करें इस थर्ड स्क्रीनशॉट को, थर्ड इमेज को इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट इमेज, you can see the visible difference, and that is what really Power BI workflow is. Now what is Power BI interface? कि जब आप एंटर हो जाते हैं Power BI एप्लीकेशन के अंदर तो उसका इंटरफेस किस तरीके से दिखता है वो भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। आपके पास 3 कोर व्यूज हैं, रिपोर्ट है, डेटा है और रिलेशनशिप्स आप किस तरीके से, और यहाँ पे डिफरेंट आप जो है फिल्टर्स यूज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के और डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं ताकि आप जो है वो अपना डेस्कटॉप अपने अपने जो रिपोर्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको आप जो है वो इंटरैक्टिव बना सकें और अट्रैक्टिव बना सकें और अल्टीमेटली रिजल्ट ड्रिवन एक्शंस ले सकें। एक हमारे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या है कि व्हाट रियली इज डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड एमएस एक्सेल, क्योंकि एमएस एक्सेल में भी पावर क्वेरी तो है और उसमें भी जो है वो आप जो है वो डैशबोर्ड तो पावर डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन what really is different between MS Excel and Power BI is that यहाँ पे जो रिपोर्ट व्यू का जो फॉर्मेट है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, काफी ज्यादा जो है वो यूजर फ्रेंडली है, काफी ज्यादा, क्योंकि पावर बीआई को डिजाइन ही इसलिए किया, इट्स एज इफ कि आप मिसाल के तौर पे MS Excel का काम मिसाल के तौर पे आप वर्ड पे कर रहे हैं, वर्ड पे आप काम कर ही नहीं सकते MS Excel का, राइट? तो इसी तरीके से जब आपके पास MS Excel की एक लिमिटेशन है और उससे ज्यादा अगर आप जब बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो वो एमएस एक्सेल की अपनी लिमिटेशन, आप उसमें काम ही नहीं कर सकते, वो उसके लिए डिजाइन ही नहीं है। पावर बीआई है डिजाइन फॉर बिग डेटा, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसमें आप जो है वो पावर बीआई में अगर उस स्किल सेट को सीख लेते हैं तो आपका रिपोर्ट कस्टम विजुअलाइजेशन, आपका जो रियल टाइम जो पब्लिश हो जाता है और कोलैबोरेशन टूल्स हैं वो सारे पावर बीआई में अवेलेबल हैं, जो कि एमएस एक्सेल में इस तरीके से अवेलेबल नहीं है जितने बेहतर तरीके से पावर बीआई को जो है वो उसमें फैसिलिटेट किया, क्योंकि माइंडसेट ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है ना। एमएस एक्सेल में वो माइंडसेट इतना ज्यादा नहीं है जितना जो है वो पावर बीआई में, क्योंकि उसमें थिंकिंग ये बनाई गई है कि बहुत सारा डेटा आएगा जिसको एनालाइज करना है। दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन। नाउ व्हाट यू विल बी रियली लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, you will be able to gain a firm foundation in connecting, transforming and creating customized visuals by delivering a reliable analysis of vast amount of data using Power BI dashboards. अब इसका मकसद यही है कि मैंने वही आपको जो पहले एग्जांपल दिया था बैंक अल हबीब का, कि बैंक अल हबीब की अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो वो कैसे उसकी जो है वो उसको जो है वो कनेक्ट कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसको कैसे कस्टमाइज विजुअल्स में कन्वर्ट कर सकती है, तो ये आप जो है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं थ्रू पावर बीआई डैशबोर्ड्स और ये आप सीखेंगे। दिस इज व्हाट यू विल बी लर्निंग। Work with quick measures to produce analytical reports efficiently and effectively. वही बात जो शुरू में मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी जो हमारे पास कीमती रिसोर्स है वो है टाइम की कमी है, तो यहाँ पे पावर बीआई आपको हेल्प करता है इन क्विक मेजर्स टू प्रोड्यूस एनालिटिकल रिपोर्ट्स विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगेन आपके पास जब ये ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे, जब आप ट्रेनिंग जो है इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे, तो यू विल बी गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन Power Pivot, Power Query and Power BI Desktop by integrating seamlessly with existing applications. आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर और ERPs चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे SAP चल रहा है, मिसाल के तौर पे कोई और जो है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MIS रिपोर्टिंग का सिस्टम चल रहा है, तो वो आप जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं विद पावर BI और ये आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द कोर्स आउटलाइन इन डिटेल। It comprises of 5 modules, which has all the industry best practices from the research that is done from different enterprises, and it obviously the aim is कि ये job market की needs को cater करे। यही जो है वो back to that UXL का introduction कि हमारा UXL का vision क्या है। हमारा UXL का vision यही है कि जो भी हमारा qualified professional है, graduate है, वो उसको ऐसे skill set सिखाए जाए कि और ट्रेन किया जाए उन स्किल सेट पे कि वो जॉब मार्केट की नीड्स को मीट कर सकें और प्रॉस्पर करें अपने करियर में। Here I will be introducing you with Tahir Ali Saab, who will be the lead trainer of this training program, and he will be giving you a brief introduction of himself, and then he will go through with different module previews कि उसमें क्या क्या फीचर्स मॉड्यूल्स में कवर होंगे और आपको उसमें से कैसे बेनिफिट मिलेगा ये ट्रेनिंग लेने के बाद।
थैंक यू। ओवर टू यू ताहिर अली साहब। मेरा नाम ताहिर है, ताहिर अली, और मैं ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट मास्टर सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ MCT, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो स्वीट है 2013 एंड 16 उसकी मास्टर सर्टिफिकेशन है, और प्लस कोई 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यही यूजुअली जो कॉर्पोरेट ऑडियंस है उनको ट्रेनिंग कराते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जो एसोसिएशन है IBA के साथ है, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर पाकिस्तान PSTD, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करंटली अभी UXL के साथ। तो कोर्स बाकी जो हमारा है ये कॉम्बिनेशन है एक्सेल का, जैसे नाम है इसका हमारा कोर्स का डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। तो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग थ्रू एक्सेल, यानी यूजिंग जस्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और देन डैशबोर्ड रिपोर्टिंग या क्रिएटिंग डैशबोर्ड यूजिंग एक्सेल BI टूल्स। जैसे अभी प्रेजेंटेशन के बीच में किसी ने सवाल किया था कि जी ये क्या अलग अलग टूल्स हैं या एक्सेल के साथ हैं? तो एक्सेल के साथ भी इसके अंदर बिल्ट इन भी हैं ये टूल्स, BI टूल्स हैं। और अच्छा ठीक है, ये जो है, अब आ रही है आवाज? तो इसके अंदर जो हम कवर करेंगे, एक तो सिर्फ एक्सेल को डिस्कस करेंगे कि जी हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड यूजिंग जस्ट एक्सेल, और प्लस फिर डैशबोर्ड्स हम किस तरह से और एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल BI टूल्स, जो कि एक्सेल का पार्ट होते हैं। यानी अगर आप एक्सेल 2016 प्लस यूज कर रहे हैं वर्जन एक्सेल का, तो उसके अंदर बिल्ट इन जब आप इंस्टॉल करते हैं एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो उसके साथ बिल्ट इन होते हैं ये सारे टूल्स। यानी 4 टूल्स है उनका सेट है BI टूल्स जो कहलाते हैं आपके। एक पावर पिवट है, एक पावर क्वेरी है, पावर व्यू है, और एक जो चौथा है पावर मैप। ये अवेलेबल होता है ऑफिस 365, अगर लाइसेंस है आपके पास तो आपको अवेलेबल होता है। तो ये हम कवर करेंगे। यानी बेसिकली आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं इस पूरे कोर्स को। एक जो है वो सिर्फ एक्सेल के हम कंपोनेंट्स यूज करें, लर्न करेंगे किस तरह से हम उनको इंटरैक्टिव, किस तरह से विजुअल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हम जो है वो इंटरैक्टिव चार्ट्स, ग्राफ्स किस तरह कर सकते हैं फॉर्म कंट्रोल्स को यूज करते हुए, और एडवांस फार्मूलाज, ये जो ऑलरेडी हमें जिन्हें हम एडवांस फार्मूलाज कहते हैं, यानी VLOOKUP हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, ऑफसेट हो गया, ये सारे जो फार्मूले थे इनका यूज इन क्रिएटिंग डायनामिक विजुअल्स, इंटरैक्टिव विजुअल्स फॉर डैशबोर्ड्स, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम जो है वो मूव करेंगे। ये जैसे आपको मॉड्यूल 1 दिख रहा है, तो इसके अंदर हम जो है वो अगर तो आपको इसकी नॉलेज है वेल एंड गुड, लेकिन हम फिर भी अज्यूम ये करेंगे कि जी हमें इसकी नॉलेज नहीं है और हम स्क्रैच से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, फंक्शन हैं, ऑल्दो आपने किए होंगे, अगर किए हुए हैं तो स्टिल इनके बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे या आपने इस्तेमाल नहीं किए होंगे शायद। तो वो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आते भी हैं ये फॉर्मूले, आपके इस्तेमाल में भी हैं, तो हम इनके जो है वो बहुत अलग तरह से नए नए यूजेस जो है वो देखेंगे फॉर क्रिएटिंग डेटा एनालिसिस एंड विजुअल्स डैशबोर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज हम देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं और उनका क्या यूजेज होता है, या नेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह आप किसी सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को आप फिर नेम डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसको रेफर कर सकते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर। तो वो भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे डिटेल के अंदर। ये इसकी वीडियो भी है अगर आप देखना चाहें तो। ये तो एक वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसके अंदर। और हम इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को ड्यूरिंग द कोर्स कि वो अपना जो डेटा है उससे रेलेवेंट कोई इशू है, या ये जो आपने चीज़ सीखी है
क्लास के अंदर ये अपने डेटा पे अप्लाई करें, और उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। हम कोशिश करते हैं कि उनको जो मसले हैं उनको हम रिजॉल्व करें। तो ये एक क्लास है इस कोर्स का। चलिए, फिर इसी तरह जो चार्ट्स हैं, ये तो जो आपको आउटलाइन दिख रही है बेसिक्स हैं, बट बेसिक्स को ब्रीफली हम कवर करते हुए, अगर किसी के इस्तेमाल में नहीं है विजुअल्स डेटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स एंड ग्राफ्स जिसे हम कहते हैं, अगर वो नहीं है किसी के इस्तेमाल में, तो हम एक ब्रीफ उसका ओवरव्यू देते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू क्रिएटिंग द एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस, वो हम कवर करते हैं। जैसे ये मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा कि हम जो है वो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, और इस तरह से दूसरे जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम डायनामिक विजुअल्स क्रिएट करते हैं। जैसे ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सर ऊपर एक डेटा है आपके पास 6 महीने का, और उसका नीचे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, और यूज़र जो है वो मंथ्स जैसे चूज करता जाता है वैसे वैसे जो है आपका विजुअल जो आपका वो चेंज होता जाता है। ये सारे नॉन नेटिव चार्ट्स कहलाते हैं, जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के डायनामिक चार्ट्स को यूज़ करने के को डिफाइन करने के लिए, कि जो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन नहीं है, लेकिन हम उनको क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। एक्सेल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह के चार्ट्स बनाने का, बट हम उनको क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। तो तमाम चार्ट नॉन नेटिव चार्ट टाइप्स कहलाती हैं, और वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर फॉर क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर लर्न करेंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद पिवट टेबल्स हैं। पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप लोगों ने किया हुआ है, जो है पार्टिसिपेंट में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया हुआ तो ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। अब तक अगर आपने एक्सेल को इस्तेमाल किया और पिवट टेबल इस्तेमाल नहीं किया है तो विल बी अमेज्ड कि पिवट टेबल जो है वो ठीक है जी। तो ये हम सिंपल पिवट टेबल देखेंगे पहले। तो सिंपल पिवट टेबल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम एक कंप्लीट डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं यूजिंग जस्ट पिवट टेबल। ठीक है, हमारी एक कोर्स में ये प्रैक्टिस होती है कि हम वो एक जो हमारा पास डेटा है, फिक्टिशियस डेटा है, उसका हम एक डैशबोर्ड, कंप्लीट डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं यूजिंग ओनली पिवट टेबल्स। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पिवट टेबल यूज करते हुए कंप्लीट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हम क्रिएट करते हैं पिवट टेबल के जरिए। जैसे मैं यहाँ पे ये तो खैर पिवट टेबल है कि यानी अगर आप फॉर्मूला यूज करते हुए डेटा के एनालिसिस कर रहे थे अब तक, तो यहाँ पर उस बगैर फॉर्मूला लगाए विद जस्ट फ्यू क्लिक्स आप जो है वो मल्टीपल रिपोर्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे, और इसलिए भी कवर करेंगे क्योंकि इसके बाद जब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे BI टूल्स हैं, तो उसका ये प्री रिक्विजिट है कि आपको पिवट टेबल आना चाहिए। अगर आपको पिवट टेबल नहीं आता तो आप पावर पिवट भी नहीं सीख सकते। तो इसलिए हम पिवट टेबल डिटेल में कवर करते हैं, ताकि जब आप पावर पिवट पे मूव हो तो आपके पास फाउंडेशन हो, और उसके बाद फिर हम उस पर बिल्ड करते हैं, जो कि एंटायरली डिफरेंट जो है वो लर्निंग है। अब तक अगर आपने एक्सेल इस्तेमाल करते रहे हैं और एक्सपर्ट हैं बेशक, लेकिन पावर पिवट के ऊपर जब आप मूव करेंगे तो वहाँ इट्स डिफरेंट वर्ल्ड, कि आपने जो फॉर्मूले अब तक लगाते रहे एक्सेल के ऊपर और जो दूसरे काम करते रहे, वहाँ पर उसका जो है वो इंटरफेस ही डिफरेंट है, उसकी वर्किंग ही डिफरेंट है। ऑल्दो कि उसका आउटपुट एक्सेल के ऊपर ही आता है और पिवट की शक्ल में ही आता है, आप पिवट पे रिपोर्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो उसके बैकएंड के ऊपर काम होता है, जैसे शुरू में बताया फरहान साहब ने भी, कि जो उसकी लैंग्वेज है, उसके फॉर्मूलाज की लैंग्वेज है, जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स कहलाते हैं, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही जिसे आप कह लें कि पावरफुल लैंग्वेज है, जिसके जरिए आप जो काम आप पिवट टेबल से नहीं कर सकते, वो काम आप सारे के सारे जो है वो डेक्स यूज करते हुए, डेक्स फॉर्मूलाज यूज करते हुए वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर उसके अंदर जो पावर क्वेरी का ऑप्शन है,
वो इस्तेमाल होता है डेटा को, जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज, जो टर्म इस्तेमाल की जाती है कि नॉर्मलाइज द डेटा, कि जो कि पिवट की रिक्वायरमेंट है वो उसको उस शक्ल में लाने के लिए डेटा को हम पावर क्वेरी को यूज़ करते हैं और डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं और फिर उसको लेकर आते हैं पावर पिवट में और फिर उस पर एनालिसिस करते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर, किस तरह से आपका नॉन और वो जैसे शुरू में बताया कि जी ये इट वर्क्स लाइक मैजिक, कि आपका जो है वो डेटा जो कि आप जिस पे यकीनन आप सबका वास्ता पड़ता है डेटा के साथ, तो जो डेटा नॉन नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर होता है या जिसे आप कह लें आसान जबान के अंदर के बहुत ही अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, उसको आप एक बार ऑर्गेनाइज करते हैं पावर क्वेरी के अंदर और फिर उसके बाद जितना भी डेटा फर्दर आपका आता जाता है उसी शक्ल में बेशक, लेकिन वो उस पावर क्वेरी से गुजर के जो उसकी नॉर्मलाइज फॉर्म है उस में कन्वर्ट होता है एक दफ़ा की मेहनत के बाद आप, और फिर आप जो है वो जो आपने उससे डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है, जो भी विजुअल डिज़ाइन किए, ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाते हैं। तो वो डिटेल के अंदर हम इंशाल्लाह वो भी सिनेरियोस कवर करते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा कि हम इनकरेज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपना जो डेटा है वो अगर हमारे साथ शेयर करें तो उससे हमारी भी लर्निंग होती है और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी लर्निंग होती है। तो ये हम कवर करते हैं जो सेकंड हमारा पार्ट है जिसमें के BI टूल्स एज पार्ट ऑफ एक्सेल, कि हमें एक्सेल से बाहर नहीं निकलना पड़ता, एक्सेल के अंदर रहते हुए ही हम जो है वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगेन अगर आप 2016 या उससे आगे का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके साथ बिल्ट इन होता है, 2013 के अंदर भी होता है, लेकिन पावर क्वेरी पावर पिवट जो है उसका पार्ट होता है। पावर क्वेरी जब आपको फ्री डाउनलोड है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आके फ्री डाउनलोड करके, लेकिन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो 2007 के साथ ये प्लगइन्स कंपैटिबल नहीं है। 2010 में पहली बार ये टूल इंट्रोड्यूस करा है माइक्रोसॉफ्ट ने, 2010 भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके पास एटलीस्ट 2013 तो होना ज़रूरी है, 2016 हो या 19 हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पिवट टेबल्स हैं, ये पावर पिवट जैसे मैंने बताया आपको। और फिर इसी तरह जो तीसरा टूल है पावर व्यू, एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी हो गया, पावर पिवट हो गया, पावर व्यू जो है उसके जरिए से हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कि हम एक्सेल के ऊपर एक्सेल की शीट के ऊपर अपने विजुअल्स एम्बेड करते हैं यूजिंग लाइक पिवट टेबल, लेकिन ये जो टूल है पावर व्यू ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप इसके ऊपर जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट करें और जो विजुअल इसके ऊपर हम रखते हैं वो आम विजुअल्स या आम चार्ट्स या ग्राफ्स नहीं होते जो कि एक्सेल के अंदर आप देखते हैं, बल्कि ये इंटरैक्टिव चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं। यानी अगर आपने लेट्स से के मंथली सेल्स का एक चार्ट बनाया जो कि आम एक्सेल के अंदर आप बनाते हैं, तो उसमें आपके कॉलम चार्ट्स आपको दिख रहे होते हैं हर महीने के, लेकिन अगर आप उनके ऊपर क्लिक करें तो उस क्लिक से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप यही चार्ट पावर व्यू के अंदर बनाएं और फिर आप उसमें किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करें तो उसके क्लिक करने से जितना भी डैशबोर्ड पे मजीद चार्ट्स हैं वो सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं उसके मुताबिक। तो ये जो है वो डिफरेंस है पावर व्यू के डैशबोर्ड के अंदर और नॉर्मल एक्सेल के ऊपर आप डैशबोर्ड बनाते हैं। एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। और ये कवर करने के बाद और अगेन जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि जो पावर पिवट है ये और नॉर्मल एक्सेल के अंदर फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यही है कि जी ये डिज़ाइन किया गया है जो बिग डेटा के लिए, यानी जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एक एक्सेल की जो शीट होती है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉज हैं आपके पास, वो जस्ट अबव 1 मिलियन रॉज हैं आपके पास। ठीक है, तो ये कैपेसिटी है उसकी। लेकिन अगर जिस डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली बैंक्स के अंदर जो डेटा होता है तो वो तो कई मिलियन रॉज के ऊपर होता है। तो अगर हम एक्सेल के ऊपर उसको एनालाइज करने जाएं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वही जो है वो हैंग कर जाती है।
तो पावर पिवट डिज़ाइन ही लार्ज डेटा के लिए किया गया है। कई मिलियन रॉस का डेटा जो है वो आप इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं। तो और उसके अलावा फिर जो एनालिसिस है, टाइप ऑफ एनालिसिस हम डेक्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब उसके अंदर डिटेल के अंदर, तो उसकी पावर आप देखेंगे। इसीलिए इसका नाम पावर पिवट रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, कि जो फार्मूलाज की पावर है वो कई गुना ज़्यादा है जो ऑर्डिनरी फार्मूलाज एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सेल का BI का पार्ट है। और उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमारा डेस्कटॉप का पार्ट। तो डेस्कटॉप जो है पावर BI डेस्कटॉप, ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, और फ्री टू डाउनलोड है, लेकिन बस यहीं तक ही फ्री है, यानी आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद जब आप जो है इसको इन रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हैं विद एन ऑडियंस, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक छोटा सा लाइसेंस रखा है जो प्रो लाइसेंस कहलाता है। अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो जो शेयर करने वाला है उसके पास भी प्रो लाइसेंस होना चाहिए, और जो जिसके साथ शेयर किया जा रहा है उसके पास भी प्रो लाइसेंस होना चाहिए। तो ये इसमें एक वो है। अदरवाइज आप अगर आप लाइव डेटा शेयर करना, लाइव रिपोर्ट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अदरवाइज डेस्कटॉप की जो आप डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू PDF या टू पावर पॉइंट। तो वो जो है अगर आप स्टैटिक रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो स्टैटिक रिपोर्ट आप बगैर लाइसेंस के भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव डैशबोर्ड शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रो लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो डेस्कटॉप के ऊपर ही होगा, क्योंकि ऑल्दो के माइक्रोसॉफ्ट 60 डेज का फ्री लाइसेंस दे रहा है प्रो का जब आप साइन अप करते हैं, लेकिन साइन अप के लिए भी उनकी शर्त यह है कि जी जीमेल, हॉटमेल का अकाउंट या याहू का अकाउंट वो नहीं एक्सेप्ट करते, बल्कि डोमेन बेस्ड जो अकाउंट्स हैं, ईमेल अकाउंट्स हैं आपके, वो रिक्वायर्ड होते हैं। यानी आपकी कंपनी का अगर ईमेल आईडी है जो डोमेन नेम के साथ है, या और इस तरह से आप अपना कोई URL आपका रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर कोई ईमेल आईडी है तो वो उसके ज़रिए आप रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन हॉटमेल, जीमेल, याहू जो फ्री ईमेल सर्विसेज हैं उनके ईमेल के ज़रिए आप रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इसलिए हम जो मेन हमारा जो फोकस होता है इसके अंदर वो उस चीज़ पर होता है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। तो हम डेस्कटॉप को ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसमें फिर हम एक आखिर के अंदर एक ओवरव्यू जो है जो क्लाउड का है powerbi.com, उसका ओवरव्यू जो है वो मैं शेयर कर लें के साथ। और जैसे कि हमने शुरू में भी फरहान साहब ने भी बताया कि ये जो डेस्कटॉप है, अब ये सवाल ये आता है कि जी ये डेस्कटॉप अलग से क्यों जब एक्सेल का पार्ट है। तो अलग से इसलिए कि जो इन दोनों की डेवलपमेंट टीम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो दोनों अलग अलग टीम्स हैं। यानी जो टीम एक्सेल की डेवलपमेंट पे है वो डिफरेंट है और डेस्कटॉप वाली टीम डिफरेंट है। तो वो जो डेस्कटॉप की जो प्रोडक्ट है पावर BI डेस्कटॉप, उसकी हर महीने अपडेट आ रही होती है, हर महीने उसकी एक अपडेट आ रही होती है, और वो फ्री है। वो अपडेट भी फ्री है जैसे डेस्कटॉप फ्री है, और उसमें मुस्तकिल काम हो रहा है। मुस्तकिल, अब जैसे एक मिसाल मैं आपको दूं कि जी मल्टीपल डेटा सोर्सेज, जैसे कहा शुरू में भी कि हम कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल डेटा सोर्सेज से। तो एक्सेल के अंदर जो मल्टीपल डेटा सोर्सेज के ऑप्शन आ रहे होते हैं आपके पास वो लिमिटेड है, वेयरएज इन पावर BI डेस्कटॉप आपके पास हर जो अपडेट है उसके अंदर कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो अपडेट होता जा रहा होता है। तो अगर आप डेस्कटॉप डाउनलोड करके उसके अंदर देखें भी कनेक्ट के अंदर, तो उसमें बहुत सारे आपको जो है वो कनेक्शंस मिलेंगे कि किन किन एप्लीकेशंस के साथ जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप PDF फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको, आप एक्सेल को साथ कर सकते हैं, आप SQL सर्वर के साथ कर सकते हैं, आप क्लाउड इवन फेसबुक के साथ कर सकते हैं आप, या अगर आप ईमेल कैंपेन्स चला रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर मेलचिम्प है वो आप कैंपेन एनालिसिस करना चाहते हैं उसके साथ कर सकते हैं, क्विक बुक्स के साथ कर सकते हैं।
तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल जो है वो सोर्सेस से डेटा आप डेस्कटॉप में ला के उसको कनेक्ट करके और फिर उसको एनालिसिस कर सकते हैं उसका। तो ये भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। और बाकी इसके अंदर भी जैसे पिछले 2 सेगमेंट्स के अंदर मैंने कहा कि जी हम इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपना जो डेटा है, चाहे वो मतलब जरूरी नहीं कि आप रियल डेटा शेयर करें, लेकिन स्ट्रक्चर एटलीस्ट आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो वो अगर शेयर करते हैं तो वो असल जिनसे हम जो आपके साथ डेटा शेयर करते हैं वो फिक्टिशियस डेटा होता है, लेकिन अगर आप अपना डेटा शेयर करते हैं तो बेस्ट लर्निंग वही होती है। आपकी खुद की तो होती है, लेकिन जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक डाइवर्सिफाइड डेटा पे काम करने का, सीखने का मौका मिलता है। तो ये हमारी ओवरऑल थीम होती है इस कोर्स के अंदर लर्निंग के हवाले से। तो ये एक इसका है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो? ठीक, वीडियो एक ब्रीफ सी वीडियो भी देख लें इसकी, जो पावर BI की है। जिस तरह कनेक्शंस की बात हुई है, फ्रांस अभी आपको ये मल्टीपल डेटा आपने इम्प्रूव किया, आपस में रिलेट किया, फिर रिलेट करने के बाद ये उसके अंदर ये जो पावर BI डेस्कटॉप के अंदर डिफरेंट है फ्रॉम एक्सेल, वो ये है इसका यूजर इंटरफेस। क्योंकि एक्सेल के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो एक्सेल के अंदर काम करते हुए आपको क्योंकि जो इंटरफेस है वो एक्सेल का ही होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम एक्सेल टू पावर BI डेस्कटॉप, तो इधर थोड़ा सा चैलेंज आपको ये आता है कि इधर जो इसकी वर्क स्पेस है या जिसे हम यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट है फ्रॉम एक्सेल। तो ये सीखने के साथ साथ एक और चैलेंज जो आपको आता है वो ये होता है कि आपको इसके यूजर इंटरफेस से फेमिलियर होना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे काम जो आप एक्सेल में राइट क्लिक करके कर लेते हैं, वो काम यहाँ पर इतने आराम से नहीं होते। तो इसलिए उससे फेमिलियर करना जो है वो आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वंस यू गेट फेमिलियर विद इट तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है आपके लिए। तो और फिर जब आप इसकी पावर देखते हैं और इसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं तो वो ऑब्वियसली मोटिवेटिंग होता है आपके लिए कि आप इसको सीखें भी और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो है जो कि इसमें डिफरेंट कैलेंडर टेबल्स हैं, आप डिफरेंट डेट वाइज किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं डेटा को, और फिर यहाँ पे बेसिक सा डैशबोर्ड है जो हम बना रहे हैं। और प्लस अगर आप उनका जो यूजर्स हैं अगर उनमें से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड भी रखते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन है पाइथन के साथ, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए में या मशीन लर्निंग के अंदर जो बैकएंड पे लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो पाइथन, उसकी भी इंटीग्रेशन है इसके अंदर। अलावा R लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस आप इस पर कर सकते हैं और उसके विजुअल्स भी क्रिएट कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। तो वो उसकी भी इंटीग्रेशन इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी, बाकी ये किस तरह से काम करेगा ये साइट पे हम देख सकते हैं कि जूम सेशन होंगे लाइव हमारे। अच्छा, तो ये जो है इंशाल्लाह
आपको फरहान साहब डिस्क्राइब करेंगे। तो ओवर टू यू फरहान साहब। Thank you, Tahir Saab, for such a great introduction of different modules that were covered, that will be covered into this online training of dashboard reporting and Power BI. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि how this program will really work. यहाँ पे आपको ये मैं बताता चलूं कि हमारी करंटली जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो जूम की बेसिस पर ही होंगी, लाइव ऑनलाइन वाया जूम क्लासेस होंगी, लेकिन इसमें हमने ऑन कैंपस ऑप्शन भी रखा हुआ है। बट करंटली क्योंकि हमारे पास जो है वो कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस हैं, विच मींस के 7 PM के बाद हमें जो है वो यहाँ पे अपनी ऑपरेशंस ऑफ करनी पड़ती हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन है यहाँ पे कराची में, तो इसकी वजह से हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस में कुछ कमी आई और हमें अलाउ किया गया तो हम जो है वो इसको फिजिकल भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द सिचुएशन रियली टर्न्स आउट टू बी व्हेन एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा रिलैक्स करती है कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस को। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 3 months है और एवरी सैटरडे जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 12 जून से। 12 जून से जो है वो पहली क्लास स्टार्ट होगी 6 PM to 9 PM, विच मीन्स के पूरे महीने में टोटल 4 क्लासेस होती हैं, ईच सैटरडे 6 PM to 9 PM की बेसिस पे। और इस तरीके से 3 months की ये टोटल ट्रेनिंग है और इसमें आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी दिया जाएगा, प्लस आपसे असाइनमेंट्स भी शेयर की कर दी जाएंगी। नाउ प्रैक्टिस शीट्स जो है आपका जब तौर पे सैटरडे के दिन अगर जो है वो आपकी ट्रेनिंग है तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि किस तरीके से दिस ट्रेनिंग विल वर्क ऑन, लेट्स से इफ यू हैव अ ट्रेनिंग ऑन सैटरडे 12 जून। 12 जून को आपका पहला सेशन है, तो फ्राइडे ऑन 11 जून आपको जो है वो प्रैक्टिस शीट शेयर कर दी जाएगी और जूम ऑनलाइन मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग में व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाएंगे जिसमें आपकी कम्युनिकेशन हो सके और फिर नेटवर्किंग भी हो सके एक दूसरे के साथ। तो आपसे जो है वो 11th को जो है वो प्रैक्टिस शीट जो है वो शेयर कर दी जाएगी, 12th को हमारी ट्रेनिंग होगी एंड देन बाय मंडे यू विल बी शेयर्ड द असाइनमेंट एंड यू विल बी शेयर्ड द रिकॉर्डिंग एक्सेस। अब हमें 2 दिन क्या टाइम लेते हैं, क्यों टाइम लेते हैं? बेसिकली 6 PM to 9 PM सैटरडे को तो हमारी ट्रेनिंग हुई, तो वो तो इवनिंग पूरी रात चली गई। लेकिन संडे के दिन हम जो है वो एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसे पॉजेस हैं या कोई ऐसे बीच में इंटरवल्स हैं जो कि यूजफुल नहीं है, तो उनकी प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करके उसको क्लीन और अच्छा स्मूथ जो है वो पूरे ट्रेनिंग को वीडियो को बना के उसके बाद हम आपको मंडे को जो है ये ट्रेनिंग का जो एक्सेस वीडियो का शेयर कर देते हैं अलॉन्ग विद द असाइनमेंट। बिकॉज द की प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? की प्रिंसिपल ये है कि वी लर्न बाय डूइंग। हम जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे और लर्निंग बाय डूइंग से ही हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो डे 1 से आपको असाइनमेंट दी जाएंगी ताकि आप उनको सबमिट करो और फिर उसके बाद आपको उसका कस्टमाइज्ड फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी लर्निंग हो सके। अब इसमें ये भी होता है इन द पास्ट हमारी बैचेस में कि आप हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी डेटा शेयर करते हैं, थोड़ा उनको चेंज करके फिगर्स को, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो हम उसको भी जो है वो आपका जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है रिपोर्टिंग में तो उसको भी जो है वो सॉल्व करने के लिए क्लास में उसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो रिपोर्टिंग में आपको आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइन अप हो रहे हैं उन सबको भी उसमें से कोई ना कोई लर्निंग एक्सपर्ट जरूर मिलता है। तो इट बिकम्स अ वेरी ग्रेट कम्युनिटी जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। फी विल बी सबमिटेड इन एडवांस बाय 5th of every month, विच मीन्स कि यहाँ पे जो 5th को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कि आपको जो है वो 5th को पेमेंट कर देनी है फॉर द ट्रेनिंग। अगर जून किया है तो जून की बात, और अगर जुलाई है तो जुलाई 5th, और इसी तरीके से अगस्त है तो अगस्त 5th। तरीके से 5th of every month को आपकी जो फीस है वो सबमिट कर लेनी है। नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर कि आखिर ये इतना सारा जो डिस्कस कर रहे हैं आखिर इसके पीछे कोई ऑफर भी है
या नहीं, या क्या इसमें व्हाट रियली इज देयर समथिंग दैट वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉज दूंगा और इससे पहले क्विकली जो है वो 1 or 2 कैंडिडेट से फीडबैक लूंगा कि हाउ डिड यू फाइंड द डेमो सो फार, ताकि फिर मैं आगे आपको ऑफर भी शेयर करूं। So, Mac, please request anyone from this panel that we have. Let's speak with Ali Haider. Ali Haider, आपका अब तक फीडबैक क्या रहा है ओवरऑल? आपने आउटलाइन देखी, आपने जो है वो अब तक जो है वो पूरा जो है वो हमारे प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा उसको भी देखा, तो what's your feedback so far? My feedback has been जी it's been wonderful up till now. बहुत सी चीज़ें जो है सीखने को भी मिली. But however, as far as my learning is concerned, I'm more interested in dashboard reporting. जहाँ से डेटा आ रहा होता है, चीज़ों को लिंक अप करना, तो वो ज़्यादा जो है वो काफ़ी जो है ना अच्छा रहेगा. Waiting for the classes to begin. Exactly. Thank you so much once again, Ali Haider. And it's just that I wanted to create this कि भाई अब तक हमारा जो डेमो है, मैं और भी पार्टिसिपेंट से obviously फीडबैक लेता, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और आई एम प्रीटी श्योर कि सब कोई वेट कर रहा होगा कि भाई स्पेशल ऑफर है क्या आखिर। अब ये स्पेशल ऑफर लेने से पहले एक आपको जो है वो कंडीशन पूरी करनी होगी। कंडीशन ये है कि आज जो है आपसे रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया गया है, शॉर्ट सा एक फॉर्म है जिसमें आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी और आपका सेल नंबर है। उस फॉर्म को जरूर लिंक को जो है वो क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये आप ऑफर अफेल कर सकें। ये हर उस कैंडिडेट को ऑफर दी जाएगी जो आज इस लिंक को क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेगा। अभी आपसे थोड़ी देर में नवीद आलम इस लिंक को शेयर कर लेंगे। इस लिंक को क्लिक करके अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और अपना सेल नंबर जरूर दे दीजिएगा, ताकि हम आपको फिर रीच आउट कर सकें एंड शेयर विद यू फॉर द स्पेशल ऑफर जो आज मैं भी आपसे शेयर करने लगा हूं। ओके, सो हियर वी गो। ये ट्रेनिंग ऑलरेडी 6,500 रुपीज की थी पर मंथ, लेकिन हम इसको PKR 4,500 पर मंथ पर लेकर आए, जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बेहतर से बेहतर स्किल्स और नॉलेज से जो है वो मुस्तफीद हों, और इसके साथ साथ वो जो है वो क्वालिटी लर्निंग लें। लेकिन जो हमारा आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उनके लिए ये ट्रेनिंग PKR 4,300 पर मंथ कर दी जाएगी, विच इज अ ग्रेट ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट आप जो है वो इस पे से फायदा भी उठाएं और आप जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। तो इसमें जो है वो आपको आज जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन ये है कि आपको ये 4,300 पर मंथ की ऑफर अवेल करने के लिए रजिस्टर नाउ एटलीस्ट अभी करना होगा, ठीक है? यू विल हैव टू एटलीस्ट रजिस्टर नाउ, बट यू कैन पे टिल 5th of May। एटलीस्ट आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है आपको एटलीस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको जो है रीच आउट कर दिया जाए और आपको जो है वो फर्दर, बट रजिस्ट्रेशन अभी करेंटली ओपन है और इसमें जो है आप जैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग PKR 4,300 की पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी, और इस तरीके से ये 3 मंथ का टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नाउ हाउ डू यू रजिस्टर? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपसे जो है वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और फिर आप जो है वो वाया ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर आप डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक या फिर इजी पैसा के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। वंस आप रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो ऑटोमेटिकली ये बैंक डिटेल्स शेयर करती जाएंगी, जो कि मैं आपसे यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पे आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो पहला लिंक है वो डेमो की अटेंडेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और ये जो हमारा है एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें आपको फर्दर जो है आप रजिस्टर करके जो है वो अपने आप को इस ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर सकते हैं। With that, I would really like to thank you for all your time that you have given, and now the floor is open for the great thing, which is the question and answer session. सर मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने देखा है आपकी प्रेजेंटेशन में, देखा है लिंक तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे लग रहे हैं मुख्तलिफ फॉर्म के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इसके अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? सर देखिए बहुत डिफरेंस है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक तरह से डेस्कटॉप डेटाबेस है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यानी वो डिज़ाइन की गई है टू मेंटेन डेटाबेस, और उसी के अंदर फिर उन्होंने फीचर ऐड किए हुए हैं कि आप उससे रिपोर्टिंग बना सकते हैं, उससे आप उसके अंदर एक डैशबोर्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पावर BI डेस्कटॉप है वो स्पेशली एक BI एप्लीकेशन है, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप जो आपका डेटा है
उसको किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस, और उसको जो है फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डैशबोर्ड। तो वो मेजर फ़र्क ये, वो एक डेटाबेस एप्लीकेशन, आप पावर बीआई डेस्कटॉप को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ भी, एसक्यूएल सर्वर के साथ भी, यानी ये सारी मैं नाम ले रहा हूँ जो डेटाबेस एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक छोटी एप्लीकेशन है, आपकी एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, सैप है, या और इसी तरह से DB2 है, ये सारी डेटाबेस एप्लीकेशन है, वेंडर्स अलग अलग हैं। तो इनके साथ आप कनेक्ट करके डेटा वहाँ ला के और फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। थैंक यू सो मच साहब फॉर योर आंसर। एंड मैं भी आपको यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा हमारे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिला हुआ है। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेफ्टा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे 2 कोर्सेज हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग के भी हैं, और दूसरा जो अभी करंटली आप जो कोर्स अटेंड करें वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस पावर बीआई, ये रजिस्टर्ड कोर्स है। और इसमें जो है वो ऑल टुगेदर आपका जो इंजीनियर लियाकत अली जामर साहब है, जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमारे सर्टिफिकेट को जो है वो साइन किया हुआ है। सो दिस शोज कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यूएक्सएल के नाम से जो है रजिस्टर्ड ऑलरेडी है। अब आपसे बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू द स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का सर्टिफिकेट। तो वो आप जो है वो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो है वो ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे रजिस्टर्ड है। और आपको जो ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑलरेडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है। तो वो ऑलरेडी आपको जो है सर्टिफिकेट की ऑलरेडी एक जो है वो वेटेज दे देता है। तो ये ऑलरेडी एक रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे अगर हो सका तो इनकी वेबसाइट भी शेयर करूंगा, जहाँ पे हमारा जो है वो माशाल्लाह इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, और जो है वो आपको जो है वो वहाँ पे आपको हमारी जो है सारी डिटेल्स मिलेंगी उनकी वेबसाइट। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे जो इदारा है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची .pk, वहाँ पे अगर हम पार्टनर इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर्ड पूरा नाम लिखा हुआ है और एवरीथिंग इज देयर माशाल्लाह फरहान क्यू। तो ये जो है वो एक और आपको एक फर्दर क्रेडिबिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन अगर आपके सामने किसी ने लैपटॉप खोल के कहा कि यार ये मुझे रिपोर्ट बना के दो, और उस वक्त आपको रिपोर्ट नहीं आई बनाने, तो सर्टिफिकेट आपका उसी वक्त जो है ना वो वैल्यू नहीं रखेगा। तो रियल पार्ट क्या है कि आपके पास स्किल है और स्किल को आप अप्लाई करो, और उसके साथ ऑब्वियसली देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट कि सर्टिफिकेट की अपनी एक वेटेज होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन असल बात तो वही है कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। और इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप साइन अप करें तो इंशाल्लाह ताला वी विल मेक श्योर कि हम अपनी पूरी मेहनत करके आपको उस स्टेज पर लेकर जाएं जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझें एज अ पावर बीआई यूजर इंशाल्लाह ताला।